बेटा, लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. अनलिमिटेड. सुबह नाश्ता में खाना चाहिए, दोपहर में, फिर रात में चाहिए ना. अनलिमिटेड है नहीं है. Keep on going, and the luxuries. The funny thing is, sometimes our necessities are luxuries. वो डी होता है, Dio, lipstick and all that, luxuries. And I'll tell you when I come to urban economy, कैसे luxuries, wants luxuries बन जाते हैं. Wants multiplying, luxury becomes necessities. Be careful. Luxuries become necessities. A mobile phone becomes a necessity. For many people it could be a luxury, but for you it's a necessity. For me, laptop is a necessity. Maybe a present shirt is a necessity for me, because I need to present myself. क्लास में यार ढंग से प्रेजेंटेबल होना चाहिए ना. Now you are a UPSC aspirant, you are coming to class, so you need at least jeans and all that. अब साड़ी पहन के बहन जी बन के थोड़ी ना आना क्लास को. अब शादीवादी में जा रहे हैं तो अलग बात है, वो नेसेसिटी अलग है, तो अलग अलग होते हैं. Sometimes beauty parlor is a necessity. It's a necessity. So there are different kinds. Your wants will become necessities. There are no end for wants. If food were plentiful, भरपूर खाना होगा. If there were enough capital in the business, if there are abundant money and time, there would not be any scope for studying economics. हर चीज भरपूर मात्रा में हर कुछ है, इकोनॉमिक्स की कोई आवश्यकता नहीं. प्रोडक्शन तो होगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, कंजम्पशन भी होती रहेगी. अब इस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड स्केर्सिटी. अभाव, आपूर्ति कम है, हर चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती. एवरीथिंग हैज अ लिमिटेशन. पैसे की कमी, कपड़ों की कमी, खाना की कमी, सब कुछ. You will not get everything abundant. Do we have petroleum? No, we are going to lithium-ion battery. We are going for electric vehicles. Funny thing, even your lithium is scarce. The lithium also is scarce. एक दिन वो भी खत्म हो जाएगी. कोयला खत्म हो जाएगी. We have 3.5 billion tons of coal. That's all. Otherwise, they have to import. 67% of commercial energy we consume is from thermal power. उसके लिए तो कोयला चाहिए. कहां से आएगी कोयला? पेट्रोलियम कहां से आएगी? Everything has an end. Yeah. Had there been no want, there would not have been any human activity. कोई चाहती नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है. ना आप है ना मैं हूं. प्री-हिस्टोरिक पीपल हैड वांट्स. क्यों में थे, उनका भी अलग अलग वांट्स थे. हर रोज हिरण को मार के ला रहा था पति, आज कुछ और लिया. हर रोज चिकन थोड़ी ना, आज मटन खाएंगे. तो अलग अलग wants. Even they had their own wants. Modern people have wants. Only wants change, and they are limitless. Your wants are limitless, and your consumption is always limited. Remember this. हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी जो चाहते हैं, वो हमेशा लिमिटलेस है. और उसको जो भरपूर करने वाली जो साधनाएं होते हैं, वो लिमिट है. Yeah? Any questions? Because we have done with this. We'll be going to economic growth and economic development. चलिए.
यहां पर निकालना है इसको। इनेबलेटिंग, हाँ जी। सो लेट्स गो नाउ। थैंक यू, हो गया, धन्यवाद। क्या करूं? हाँ, लाइट को ऑन ही है ना? अच्छा, वो मेरे चेहरे पे लाइटिंग आता है। आई डिडंट नो मैन। सोचा मैं लाइट मार रहा था, लेकिन मुझे भी कोई लाइट मार रहा है यार। इतना भी क्या है यार मुझ में, बुढ़ा हूं। राइट, सो वी सॉ व्हाट इकोनॉमिक्स इज, definitions, blah blah blah, fine, we have done that. Now we'll come to two terms here. One is economic growth, the other is economic development. Growth, यदि हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस, या कल से आज हम लोग कितने बेहतर हैं, एक पिछले 10 साल में देखें हमारी क्या वृद्धि हुई है, आर्थिक वृद्धि क्या होती है, क्या हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, क्या हम लोग खाना अलग से हैं, क्या हम पढ़ाई अलग से हो गई है। सो व्हाट आर द कॉमन मैन्स लाइफ चेंजेस हैपेंड, वन पार्ट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर विद नंबर्स। ओके, इफ यू हैव टू डू विद दिस, if you allow me to say something, I would say if you allow me, I would call economic growth, here the problem here. Economic growth is more about quantitative. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। जब भी नरेंद्र मोदी जी या निर्मला सीतारामन, अनंत नागराजन, इकोनॉमिक एडवाइजर्स, कोई भी महान महान इकोनॉमी सब जो बोलते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। IMF forecast India's economic growth as 7.2%. Inflation toned down to 3.54%. Shaktikanta Das talks about the monetary policy committee reducing the repo rate or keeping the repo rate unchanged. He said that the economic forecast is 6.8%. It's quantity, number. What is economic development? Is qualitative. Quality. Give me the quality of the life. Is your life quality better than yesterday? Is your transport system better than yesterday? Are your trains running on time than yesterday? Has your pollution level come down than yesterday? Has your nutrition improved better than yesterday? Is my girl child safe and secure than yesterday? That's the question we need to answer. That's economic development. That's what I call economic development is more about self-esteem. एक गरीब इंसान को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार जो होता है, क्या वो कायम है? Who is going to guarantee that? I'm not talking girls, I'm talking boys as well, men as well. Is my wife assured that I will be returning home safe today evening? सुबह काम पे निकलता हूं, क्या घर में आराम से पहुंच सकता हूं? कोई गारंटी है?
I'm traveling in Mumbai. Who can guarantee that there's no terrorist attack happening in India today? कौन बताएगा? What is the quality of life we are living? Don't give me the quantity, give me the quality. So that would be the topic. Now we'll take it, but initially I'll give you some basic terms दूंगा मैं आपको, so you'll understand easily. जी बेटा, लॉन्ग प्रेस, हाँ जी, पर्सनल इनकम, इसको मिटाना है जी बेटा, हाँ, विल रिमूव ऑल दैट, डोंट यू वरी अबाउट इट, इट लुक्स बेटर. पर्सनल इनकम, द इनकम वी अर्न. इससे पहले 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं आपको पूरा इनकम डेफिनेशन दे दूंगा, परिभाषा समझा दूंगा, तब बाद में आसान से लिख सकते हैं. इनकम इन एनी इकोनॉमी इज ओनली 4 काइंड्स. सिर्फ 4 प्रकार के इनकम होते हैं, आय 4 प्रकार के होते हैं. क्या? नंबर 1, सैलरीज प्लस वेजेस. इनकम, इनकम इकोनॉमी में हम लोग वाई लिखते हैं बेटा, वी राइट वाई. इनकम we write as Y, not I. जब I लिखते हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, ठीक है, आप लिखेंगे Y. Y मतलब इनकम. X means एक्सपेंडिचर, Y means इनकम, ठीक है. तो इनकम 4 काइंड्स. नंबर 1, सैलरीज एंड वेजेस. या तो महीने में एक बार सैलरी मिलता है, या हर दिन जो मजदूरी है वो होता है वेजेस. सेकंड, प्रॉफिट्स, लाभ, मुनाफा, जो भी आप कहते हैं. हम लोग 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, 12 रुपए कमाते हैं, 2 रुपए हमारी मुनाफा हो गई, लाभ हो गई है, इसको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो इनकम हो सकता है. थर्ड, रेंट. रेंट, एक मकान बना दिया, 4 पोर्शन है, 4 फ्लैट्स है, किराए पे दे दी हमने, तो हर महीना रेंट मिलते रहता है. या किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, 20 चीजें वो खुद करते, 20 किसी और को देते और उस पर किराए पे ले लेते हैं, ताकि वो लोगों की इसको लीज, एग्रीकल्चर लीज कहते हैं उन्हें. फोर्थ, इंटरेस्ट, ब्याज. अब मुझे पेंशनरी बेनिफिट्स मिल गए बेटा, आई गॉट क्लोज टू अराउंड 44 lakhs, मेरा ग्रेचुटी, पीएफ सब पैसे मिले मुझे, तो सब लेके मैंने पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, इंदिरा विकास पत्रा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एफडी, सब हर महीने मुझे कुछ 18 से 20 हजार रुपए ब्याज मिलता रहता है. वो मेरा इनकम है. मैं घर किराए पे दिया, मकान पे मुझे किराया मिलता है. पैसे निवेश किया है, इंटरेस्ट. बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट. काम करता हूं, सैलरी. So there are 4 kinds of income. Number 1, we go for the personal income, as the sum of income actually received by individuals or households from different source in economy during a given period of time. एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, एक महीने, एक साल में अगर आप जितना भी आय कमाते हैं उसे आप पर्सनल इनकम, आपकी निजी या घरेलू इनकम होता है. पीआई इंक्लूड्स income earned through wages, salaries, fees, commissions, dividends and interests. It also includes transfer income. इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा. Transfer income, if you have to explain to you in a very simplest language, getting income without doing anything. आपने कभी सुना है ओल्ड एज पेंशन?
गरीब बूढ़े लोगों को सरकार पैसे देती है 2000, 3000, 4000। स्कॉलरशिप सुना आपने? स्कॉलरशिप, हाँ, तो उनको पढ़ाई करनी बस नहीं है क्योंकि गरीब है बच्चे। बिकॉज आई ऑल्सो स्टडीड ऑन स्कॉलरशिप, 150 rupees my scholarship. All my graduation I got 150 rupees scholarship. Only then I could get my gold medal in chemistry. Delhi University gold medalist हूँ मैं chemistry में। Anyway, so मुझे scholarship, मैं कुछ करता नहीं, मैं पढ़ता हूँ। What am I giving back to the economy? मैं काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलती है ना बेटा, मजदूरी करूंगा तो मुझे मजदूरी मिलेगी। इन्वेस्ट किया बिजनेस में, प्रॉफिट। मकान बना के किराए पे दिया तो किराए। कमा के मैंने बैंक में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, मुझे इंटरेस्ट मिलती है। ट्रांसफर इनकम इज दैट यू गेट विदाउट डूइंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइक ओल्ड एज पेंशंस और स्कॉलरशिप्स। ऐसा कुछ बिना कोई काम किया इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पैसे मिलते रहते, मदद मान लीजिएगा। लाइक सिकनेस अलाउंस, पेंशंस, ओल्ड एज बेनिफिट्स। सिकनेस अलाउंस है ना, मैटरनिटी बेनिफिट होता है, 2 महीने के लिए छुट्टी दे देते हैं माँ को। ऐसे सरकारी नौकरी करती है लेकिन 2 महीने के लिए प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो गई, फिर भी सैलरी देते लेकिन वो काम पे नहीं जाती है ना। लीव है भैया, कभी छुट्टी भी देते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं, आपको मिलता है, लीव्स मिलते हैं। बट रिमेंबर, लीव इज अ प्रिविलेज नॉट ए राइट। लीव से इसीलिए पे काम पे नहीं जाऊंगा नहीं है, गलत है। लीव इमरजेंसी, कुछ काम आ पड़ा ऐसा, अब नहीं जा सकते ऑफिस को, घर पे बैठ के काम कर सकते हैं ना। आप किसी काम पे गए, मान लीजिए मेरी माँ की देहांत हो गई है, माय मदर एक्सपायर्ड, आई कांट गो टू ऑफिस, कैन आई? नो, सो आई अप्लाई फॉर लीव। महीने के बाद में पूरा सैलरी मिल गया मुझे। पीपल अप्लाई फॉर लीव, लीव लेटर पता है ना आपको? हाँ, आई हैड अ बाबूजी, बाबूजी मतलब हेड क्लर्क, इनकम टैक्स ऑफिसर बड़ा वाला। अप्लाई तो किया लीव, साइन करो तो डॉक्यूमेंट बन जाता है। यू नो व्हाट ही रोट? प्लीज डोंट लाफ, ओके। हिज वाइफ वाज नॉट वेल, पत्नी कोई बीमार थी तो छुट्टी मांगने की चिट्ठी लिखा है। यू नो हाउ गवर्नमेंट लीव लेटर लुक्स लाइक? सर सबमिटेड प्रेयर फॉर लीव रिगार्डिंग, अब बॉडी लिख रहा है, सर I beg with to your good officers that I may be granted 3 days leave, as my wife is not feeling well and I'm the only husband available at home. क्या करूं यार, मैं अकेला पति यार। नहीं बेटा ऐसा नहीं, बाबूजी यहाँ पर आइए, बड़े भैया क्या हुआ, एक्सेप्ट, नहीं सर लीव तो चाहिए मुझे पत्नी को। अरे यार लीव दूंगा यार, लेकिन इसको चेंज करो। क्या गलत है यार, पागल है क्या? बाबी जी की द्रौपदी बना रहा है यार तू, निकल। आई एम द ओनली पर्सन अवेलेबल एट होम, हस्बैंड नहीं है, पागल ना। तब उसको वापस लिखा के साइन करके भेज दिया उसको। तो वेरी फनी, पीपल अप्लाई फॉर लीव, तो उनको सैलरी मिल जाता है। हाँ जी, कोई नहीं, राइट। ये है ना पर्सनल इनकम। हाँ जी, disposable income. Next is disposable income. That means the money you can spend the way you want after making provision for income tax. आपकी जितनी भी सैलरी है, प्रॉफिट है, जो भी है, उनमें से आपको आयकर की जो प्रोविजन है उसको बगल में लगाना है। And don't ask me the stupid questions of why should I pay income tax and all that. When I come to income tax, I'll tell you why should you pay income tax. But फिलहाल तो सवाल को टाल देते हैं,
मेरी मेहनत की कमाई है, मैं क्यों भरूंगा, मैं बताऊंगा। इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या होगा, 7 साल क्या होगा, सेक्शन 35B क्या होगा, अंदर डाल के ना मजा आता है। मैं बताऊंगा इनकम टैक्स क्यों भरना है, बाद में बताएंगे हम लोग, ठीक है। आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वॉट एवर यू कैन डू विथ योर मनी, बट इट शुड बी मोरल। कंडीशंस अप्लाई। मेरे पैसे, मेरी मर्जी, मैं IPL बेटिंग करूंगा, नो। पत्ता खेलूंगा, ताश खेलूंगा, नॉट अलाउड। और कुछ लड़कियां हैं, नहीं बताऊंगा, समझिए ना। पैसे उड़ाऊंगा, ऐसे उड़ाऊंगा, नहीं उड़ाएंगे, अंदर डाल देंगे। जुआ खेलेंगे, नहीं हो पाएगा बेटा। बता दूं, मुजरे पे नहीं जाना है यार, सिंपल बात है, ठीक है। हाँ, मेरी पैसे मेरे मर्जी नहीं होता है। विद इन द लीगल लिमिट्स यू कैन स्पेंड। अच्छा खाना खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फिल्म देख लो, हाँ बिल्कुल देख लो, पूरा वर्ल्ड टूर पे जाओ, टैग भर के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर दिन 3 कपड़े बदल के नया खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर हैप्पी, यू आर पेइंग GST। दान करो और अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिस्पोजेबल इनकम, इनकम अर्न्ड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम। अब मान लीजिए यार, मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, पूरा फैमिली का इनकम 50,000 है, पर हेड कितना, 10,000 है ना, पर हेड इनकम पर कैपिटा। इट्स कॉल्ड एवरेज इनकम। दिस यू गेट बाय national income by total population. The total income of the country divided by total population. You'll get per capita income. ठीक है. हम लोग आगे चलकर वर्ल्ड बैंक एक हिसाब देती है हमें GNI पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मैं बताऊंगा और विस्तार के रूप से मैं बताऊंगा भी. फिलहाल हम लोग पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम. हाउ विल यू गेट पर कैपिटा इनकम? द टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन. 50,000 डिवाइडेड बाय 5. कोई नहीं यार, अच्छा है. You didn't tell her? You didn't tell her? नहीं बता. अरे you should tell her यार. क्लास में रहूंगा 8 बजे तक. Don't disturb me after that. Her wish. कहाँ है तू यार? Even you tell them, right? You tell the boys before you come here. No? जी? हाँ. कितने हैं? मेरे लिए तो ये कि बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूँ यार. आप लोग कितने को बताओ यार? हद हो गया यार. लाइन लगी है क्या? हाँ तो हद हो गया यार. कितने को बता? I'm talking about your girlfriend, ma'am. Tell him that you will be in the classroom 5 to 8. Don't call me. I told my wife. 8 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ, मुझे फोन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए. I won't leave the phone. My phone will be in a vibration mode और साइलेंट मोड पे रहता. कभी कभी मोटा भाई भी फोन कर लेता है तो भी स्विच ऑफ आता है, बिकॉज ही नोस वेयर आई एम. हाँ अमित शाह, we are tapped boss. We are still in intelligence. एक बार intelligence में, एक बार you are always intelligence. Once a spy is always a spy. Lifelong you are spy. Because we have lot of information, classified information रहता है. ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से किससे मिल रहा है, ये सब पता रहता है उनको. आईडी
Enforcement Directorate, mine was good rather. Mine was very good, but my DRI was not that good because I worked with narcotics. That's a very dirty area, and smuggling. Second is smuggling, money laundering. But क्या करें यार? It's a part of job. It's a part of job. ED was good. I really enjoyed working for Enforcement Directorate. But DRI was almost 8 years. 4 years CBI, Superintendent of Police, where I used to wear uniform. A couple of times I wore uniform. Then I worked on the Dawood gang. We worked in Dawood gang. मुंबई में थे हम लोग. 4-5 लोगों को घेर लिया हमने, अपने तरीके से बताया. लड़के तो मारते हैं, लड़कियां को तो नहीं मार. वी कांट टच देम. We don't inform who got encountered. We don't tell them anyone openly that we have encountered them. We only tell them that they died in accident. मारते लेकिन नहीं बताते हैं कि किसी हादसा में, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई, बस इतनी है. यही तो स्टेटमेंट होता है इंक्वेस्ट में. मारते हम ही है लेकिन हम नहीं बताते. अब लड़कियां हैं तो देयर आर क्रिमिनल्स, लेडी क्रिमिनल्स एज वेल. अब वो नहीं बताते हैं तो सिंपल है. लड़कियों की उंगलियां, नेल्स होते हैं ना, वी मेक देम कीप देयर हैंड्स लाइक दिस एंड टेक ए कटिंग प्लेयर एंड पुल द नेल आउट. वी कांट टच देम. वी कांट फिजिकली टच अ वुमन. वी आर बार्ड फ्रॉम इट. सो नेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी. कटिंग प्लेयर होता है छोटा सा, विल पुल इट. एक एक करके एक आधा घंटे में निकाल देते हैं. बाद में उनको चावल, मिर्ची पाउडर, नमक खाने के लिए देते हैं. जी हाँ, वो तो करते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. वरना यहां पर हुक डाल देते हैं, कान को हुक डाल के खींचते रहते हैं. विल पुट अ हुक हियर, रिंग एंड ऑल. एक पुली डाल के वहां से खींचते रहते तो उड़ते रहता है. अच्छे लोग उगल लेते बेटा. 10 मिनट 15 मिनट बस नहीं है, ज्यादा नहीं है. अच्छों को साफ कर देते हैं. एनीवे दैट यू डोंट वरी अबाउट इट. बच्चे डर जाएंगे यार. फिर गलती करने से डरना है, गुनाह करने से डरना है ना. चले. सुपर कैपिटल इनकम is calculated by dividing the total area total income by total population. Very good. हाँ जी. Per capita income done, right? Yeah. In India, NNPFC is taken as national income. इसको यहीं पर रोकते हैं. मैं बाद में आऊंगा. NNPFC क्या होता है मैं बताऊंगा आपको. ठीक है. नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC अभी हम लोग, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा. तो फिलहाल यहीं पर हम खुद रोकते हैं. इससे पहले हम लोग नेशनल इनकम क्या होता है देखते हैं. तो यू राइट डाउन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम. shall I use the board or shall I dictate? What do you want? Dictate is good enough? Comfortable? चंगा है. वेरी गुड यार. चंगा मतलब गुड. हम दिल्ली वाले हैं ना तो आदत सी हो जाती है. यू नो चंगा. हाँ, गुड. Any other people from other languages other than Hindi? हिंदी के अलावा, हिंदी के अलावा Sindhi. I can't speak Sindhi. Anyway, lot of Sindhis are there in Chhattisgarh. I know that. काफी पाकिस्तानी लोग भी हैं यहाँ पर जो मेडिकल शॉप खोल के रखे हैं. I know that. Don't ask me how do you know and all that. हमें पता है. ये आपके अमेरिकन क्रिश्चियन हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर क्या क्या हुआ ये भी बताऊंगा आपको. राजनांदगांव में क्या हुआ ये भी बताऊंगा. पूरा हिस्ट्री बताऊंगा छत्तीसगढ़ का. भाडापारा का पोहा इंडस्ट्री में क्या होता है बताऊंगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट तेलुगु, एनीवन हु स्पीक्स, लॉट ऑफ तेलुगु पीपल हियर, राइट? रायपुर हैज लॉट ऑफ तेलुगु पीपल हियर. नो नहीं यार, काफी लोग तेलुगु है यहाँ पर. दे कम फ्रॉम विशाखापट्टनम एंड ऑल. No. Kannadigas, Tamilians, नहीं है. Only Hindi. चंगा है. How is my Hindi? ठीक है.
I speak 8 languages. I speak very good Gujarati, I speak very good Marathi, I speak very good Tamil, Kannada, Telugu और अलग अलग के हिंदी है ना, इंदौरी, भोपाली, ये भी तो ठीक है, कोई नहीं. विल गो फॉर नेशनल इनकम. योर हेडिंग इज नेशनल इनकम. I'll give you 3 definitions of it. इनकी 3 परिभाषाएं मैं बताऊंगा आपको, एक एक करके लिख लेते हैं, बस समझाऊंगा भाई, डोंट वरी अबाउट इट. नंबर 1, the volume of goods and services produced in a country. The volume of goods and services produced in a country. ठीक है, वॉल्यूम ब्रैकेट लगाइए बेटा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक ब्रैकेट लगाइए. X tons of grain. X tons of grain. अनाज, अनाज बेटा, X tons, यानी इस देश की उत्पादन क्षमता, कितनी उत्पादन कर सकते हैं. वीट कितना, I told you, I don't use the Hindi word of wheat. I have my own issues with it. What's your problem? Tell me. Why not? Why not? You can't say that, beta. You can't say that. Nor will I say that. Wheat. WH, हाँ? नहीं हूं, स्ट्रेट हूं. और लड़की आप कैसे कह सकते बेटा? कोई लड़का कह लिया तो यार हाँ हो सकता है, शायद करण जौहर मान लेती है, और लेकिन आप कैसे कह सकते बेटा? दिमाग की बत्ती थोड़ी देरी से जली बेटा, कोई नहीं है. I won't use the Hindi word for wheat. I don't like it because I'm straight. मेरी एक पत्नी है, एक बेटा है, तो मैं स्ट्रेट हूं. तो wheat, X tons of wheat. राइस, चावल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कितनी आसानी से चावल. देन X tons of सीमेंट, X tons of स्टील, ऐसा. X liters of milk, आगे कॉमा, X liters of milk. आज सुबह से रायपुर में कितने लीटर दूध बिके होंगे बेटा अप्रोक्सीमेटली? 1 लाख लीटर रायपुर में. अगर 1 लीटर 50 रुपए की मानते हैं, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि 50 लाख रुपए सिर्फ दूध के बिके हुए? सिर्फ दूध बिकने से 50 लाख किसने कमाया है ना? आलू. Suppose today Raipur consume 10,000 kgs of potato. Each kg potato is 30 rupees. So 10,000 into 30 rupees is the income earned from potatoes. प्याज, हरी मिर्ची, धनिया. हाँ, तो ये होता है X liters of milk, X meters of cloth, X meters of cloth. ये क्षमता है, उत्पादन क्षमता. देश की उत्पादन क्षमता को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं. कितना कितना क्या क्या बिकी है देश में, इससे कितना कमाई हुई है. एंड हाउ मेनी पीपल हैव गॉन टू जॉब, हाउ मेनी पीपल हैव वर्कड इन द ऑफिस, देयर सैलरी. कितने लोग मजदूरी की? इतने 500 रुपए, इतने 400 रुपए उनकी मजदूरी. कितने किराए पे दिए गए? इतने किराए. हाउ मेनी होटल्स हैव बीन बुक्ड इन रायपुर टुडे? ईच होटल रूम 1000 रुपीज एवरेज, तो इतना किराए पे आया. हाउ मच मनी हैज कम इनटू बैंक्स टुडे? हाउ मच इंटरेस्ट वाज पेड? वी कैन कैलकुलेट. सो द वॉल्यूम. नंबर 1 इज वॉल्यूम. नंबर 2, सेकंड, कंटिन्यू बेटा, नेशनल इनकम सेकंड. The flow of goods and services. The flow of goods and services.
फ्लो ऑफ गुड्स. एक तो वॉल्यूम हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, थर्ड कंजम्पशन, third is the production power of an economy. The third is flow of, second is flow of goods, third is flow of goods, flow of goods in an economy. Second, third, production power. The production power of an economy is देश की उत्पादन क्षमता कितनी है, कितना अनाज, कितना सीमेंट, कितना स्टील, कितना कपड़ा, कितना दूध, कितना पेट्रोलियम, कितना सनफ्लावर ऑयल, हर चीज लेते हैं. देयर आर 637 आइटम्स. यहां तक हम लोग सरसों होता ना, राई होता है, राई, जीरा, हिंग, इसका भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग. सीएसओ में हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं. अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर हैज बीन कंज्यूम टुडे, we can calculate. The government has a figure. This income is called as national income. Now I am going to confuse you. पहले बता के कंफ्यूज करूंगा बेटा, मैं ऐसे वैसे नहीं, मैं बता के कंफ्यूज करूंगा. ठीक है, चले. A's income is B's A's expenditure is B's income. मान लीजिए आप खर्च किया है, इनकी वो उनकी इनकम हो गई, इन्होंने खर्च किया है, इनका इनकम हो गई, ये खर्च किए, उनका इनकम हो गया. You understand now? In an economy, what we do, when I spend, someone else earns income, so it keeps on going. That's why money has two names. One is liquidity. पैसे का एक नाम है लिक्विडिटी. लिक्विड मतलब पानी की तरह बहती रहती है, एक दर ठहरता नहीं बेटा. उसकी माता लक्ष्मी है ना, उनकी एक नाम है चंचला करके. विष्णु जी की पत्नी है ना लक्ष्मी मैया, हाँ, उनका एक और नाम है चंचल. वो एक दर ठहरती नहीं बेटा, और उनके पति जो है सोते रहते हैं हमेशा, वो कहीं से हिलते नहीं है. ये माता जी कहीं नहीं रहती है, घूमते रहती है. तो लक्ष्मी जी पैसे, लिक्विडिटी. सेकंड इज करेंसी. CUR, कर मीन्स रन. CUR कर होता है ना, इसका मतलब रन, भाग. हमेशा एक दूसरे से पैसे भागते रहते बेटा, एक जगह टिकती नहीं है. अगर आप टिकाऊ हुए है, कबोर्ड में लगा के ताला लगा के बैठ गए, तो नवंबर 8, 2016 8 बजे भाई और बहनों, हाँ जी, याद है 2016 8 बजे, नवंबर 8, भाई और बहनों, इस बार 2000 नोट बिना बताए निकल लिए. आगे से जाके 500 भी निकाल लेंगे. 200 विल बी द मैक्सिमम करेंसी. आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको. एवरी मंथ अ पर्सन कैन विड्रॉ ओनली 40,000 रुपीज करेंसी. दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दिस. India is going toward become a cashless economy. या तो फोन पे करो या गूगल पे करो, कुछ भी करो, पूरे जितने भी पैसे हैं सब अकाउंट में दिखाई देना चाहिए. और ये अकाउंट आपकी आधार से लिंक है, आधार पैन से लिंक है, पैन इनकम टैक्स वाले के पास है. खर्च करो. मैक्सिमम विल बी 200 रुपी करेंसी. छोड़िए खर्च के लिए यार, 10 के रुपए चाय के या 10 रुपए हरी धनिया के लिए, पुदीना के लिए, बस खर्च. ज्यादा नहीं है. ज्यादा है देवी और सज्जनों, 50 रुपए प्राप्त हुए हैं. थैंक यू. फोन पे हो गई. चाय पियो, पे करो, कहीं भी जाओ, बैंक NEFT करो, पैसे चले. एवरीथिंग विल बी इन अकाउंट. करप्शन विल बी जीरो. आगे चलकर इलेक्शन में पैसे बांटना है तो कैसे बांटोगे? फोन नंबर बताओ, मैं ट्रांसफर कर दूंगा. हाँ, हर कोई वो QR कोड दिखा दो, 5,000 रुपए ट्रांसफर हो गए आपके, मेरे नाम पे वोट देना है.
थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट कम सुनो, कौन सा लीडर, कौन सा नेता किसको क्या कहाँ दिए, पैसे क्यों दिए। सर वो वोट मांगने आया था, 5,000 दिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आप आइए। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी खतरनाक है ये। डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियन इकोनॉमी बेटा। ठीक है, चलिए। सो ए स्पेंड्स, बी अर्न्स, बी स्पेंड, सी अर्न्स, है ना। तो किसी पॉइंट पे हम लोग को कैसे पता चलता कि भाई ये इतना नेशनल इनकम है जी। हाउ हाउ डू यू नो, हु विल टेल, कौन बताएंगे, कौन सा दुकानदार बताएगा भैया कि मैं इतना बिक्री किया आज। हाउ विल इवन नो। ठीक है, कंफ्यूज्ड, thoroughly confused? I'll tell you, I'll clarify that. Note कहाँ है यार, नोट कहाँ है। हाँ जी, पेन विल टेक, ब्लैक है ना, ब्लैक नहीं है, विल टेक येलो, राइट। दस एकड़ का एक जमीन है बेटा। मान लीजिए मई 14, आज मई 14 तारीख है, जमीन है, बारिश नहीं है, कोई फसल स्टैंडिंग नहीं है, कोई फसल नहीं है इसमें, नो एग्रीकल्चर क्रॉप, सिर्फ मिट्टी है। इफ द फार्मर डजंट वांट टू सेल द लैंड, what is the economic value of this land? अगर जमीन नहीं बेचना है इस किसान को, तो इस मिट्टी का क्या वैल्यू है, 0 है ना, सिर्फ मिट्टी है, वहां पर कुछ नहीं है। अब कोई खेती बाड़ी भी नहीं शुरू करते, कृषि भी कुछ नहीं है, बारिश भी नहीं है। कम जून 10, पहली बारिश शुरू हुई है, सिंचाई हो रही है, पानी आ रहा है, तो एक ट्रैक्टर लेके टिलिंग की, उसने हल चलाई, पानी छोड़ी, बीज लगाए, ठीक है, और वर्कर्स लगाए, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर, सब वीडिंग आउट किया, सब किया है। लेट्स कम टू नवंबर नाउ, क्रॉप इज स्टैंडिंग, ठीक है, तो क्रॉप इज स्टैंडिंग। He employed more people to cut the crop. Repeat. फसल कट गई, थ्रैशिंग हुआ है, पूरा अनाज बोरी में डाल दी, ट्रक में लेके मंडी पहुंच गए, मंडी में बेच दी। पूछा भैया ये क्वालिटी राइस कितने में बिक रहा है, बोला ये क्वालिटी अच्छी है सर, हम लोग 30 में देते हैं आपको 1 किलो, और आपके पास है 10,000 किलो। तो एक ट्रेडर जो अनाज खरीदता है, वो किसान को कितने पैसे देना है, 3 लाख रुपए देना है। Yes or no? Where was this 3 lakhs in the month of May? कोरबा में जमीन के अंदर कोयला है या बॉक्साइट है, उसकी वैल्यू कितनी बेटा, 0 है। जब बाहर निकाले उसकी वैल्यू बन जाती है। ट्रक पे लोड हो गया, बॉक्साइट आ गए बाल्को फैक्ट्री के, वहां से क्लीन होके एल्यूमिनियम इंगोट बन के बाहर निकलता है, तो वैल्यू बनती है ना। कोयला है, पानी है, थर्मल पावर क्या पावर है, व्हाट इज द पॉइंट, नथिंग, अनलेस यू जनरेट द पावर इट गेट्स वैल्यू। सो प्रोडक्शन पावर ऑफ अ कंट्री, national income is calculate number 1 production method, पहले वाला प्रोडक्शन मेथड से पता चलता है कि कितना प्रोड्यूस किया हमने। दैट्स व्हाई आई सेड प्रोडक्शन पावर ऑफ एन इकोनॉमी। मैं नेशनल इनकम में 3 लिखवाया, आपसे याद है। वॉल्यूम ऑफ गुड्स कहा मैंने, नहीं बेटा, आप 10,000 किलो चावल तो बाहर निकली ना मार्केट में कहा था ये 10,000 किलो नहीं था ना, जमीन 0 था,
इसी तरह कॉटन आया, ग्राउंडनट, आलू, प्याज, मिर्ची, शुगर केन, कोयला, पेट्रोलियम, ऑल दिस हैड टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी गुड्स। सो वन इज द प्रोडक्शन मेथड, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन तो किया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंज्यूम करना है ना, कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंडिचर करना है आपको। सर नो, विदाउट स्पेंडिंग हाउ विल यू कंज्यूम? यार मार्केट में 100 किलो चावल है, आपको 10 किलो चावल चाहिए, 1 किलो चावल 50 रुपए है, 10 किलो चावल के 500 रुपए देने पड़ते हैं कि नहीं दुकानदार को? तो निकालो पैसे बाहर। कितने पैसे बाहर निकले आपके बटुआ से, ये कैलकुलेट कर सकते हैं? The average price of rice is 50 rupees a kg. Today Raipur sold 10,000 kgs. 1 liter milk is equal to 50 rupees. Today Raipur consumed 10,000 liters of milk. Can I calculate? Expenditure method. Third, consumption method. That is, the stock बच के कितना कंज्यूम हुआ है। प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन मेथड। कंज्यूम करके कितना पता चला हमें कि कितना कंज्यूम हुआ है, कितना बचा, स्टॉक होता है, इसको नेशनल स्टॉक कहते हैं। गोदाम में अभी कितना बाकी है? 25 किलो का बैग लाया बेटा चावल, पूरा 25 किलो आज ही नहीं खाएंगे ना, एक 10 दिन में 10 किलो खा गए मान लो, अभी 15 किलो बाकी है ना, और उसको नेशनल स्टॉक कहते हैं हम लोग। Though you spent it, you didn't consume it. It's still the pending is. 5 किलो चीनी ले आए, 2 किलो खाए, 3 किलो अभी घर में है ना, नहीं है? हाँ, this is how we calculate the national stock. National stock is also a good calculation for knowing the value of the economy. हर घर में भरपूर खाना है, ये पता चलता है नेशनल स्टॉक से, ठीक है? So this is national income. So tomorrow when we come, it's 8 o'clock now, it's time we left. अभी भूख लगी होगी आपको, 5 बजे शुरू किए था हमने, 8 बजे या 8:01 चले, that should be the one for today. Thank you very much. Don't thank me. I thank you because you are very patient, you listen very carefully, you try to learn it. When your body language was exemplary. But don't thank me. If at all you want to thank me, thank your parents first. घर जाके जब माँ रोटी देती है तो पहले मम्मी को थैंक्स बोलना है। कभी कहा मम्मी से थैंक्स रोटी देने में? हाँ, you do? Wow, I didn't know this. And what is the reaction? Huh? I understand, but anyway, good. If you can thank your parent, then you can thank me. माँ खाना देती है, गुरु ज्ञान देता है, बेटा दोनों एक ही है। हाँ, मुझे थैंक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक ही बार थैंक्स कहिएगा जब आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी ना यूपीएससी का, हाँ तब आके थैंक्स बोलना। हो सके तो एक लड्डू दे देना बेटा, खा लूंगा। Tell me one thing, do you seriously want to be a UPSC civil servant? Yes, then you are with me. नहीं सर भाई टाइम पास के लिए, then I can't help you. If you are hell bent on becoming civil servant, then I am with you. ठीक है? Tomorrow when you come, you will have a test for 10 questions, very basic level. Don't you worry about it. थोड़ा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। 10 के 10 हो सकते हैं, संभव है। ठीक है, चले। गुड नाइट फॉर ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर, लेट द गर्ल्स गो फर्स्ट, देन बॉयज विल लीव।